ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है जी। मैं बड़ी जामा मस्जिद इंतजामिया प्रबंधक कमेटी का वाइस चेयरमैन हाँ। साडी जिहड़ी इत्थे मस्जिद हाजी रतन आ उसे असी प्रबंधक ही हाँ। पहलां साडे वंड वडेरे हुंदे सी प्रबंधक, उदों बाद असी यंग मुस्लिम वैलफेयर सोसाइटी 2006 दे विच और बनाई सी। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2017 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਘਟਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ 2017 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮਦਾਦ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਛੋਟੇ ਖਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਖਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਰਾੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਆ, ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। 2023 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲੋਨੀ ਕਟਵਾਈ ਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਘਰ ਕਟਵਾਏ ਆ, ਔਰ 30-35 ਘਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਲੈਤੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 2006 ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਕਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰਬਲੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ 35-36 ਘਰ ਉੱਥੇ ਕਟਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਫੈਜ਼ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 38,700 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੂਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਗੂ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਮਸਜਿਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ 10-12,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ CEO ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, CEO ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਂਝ-ਮਾਝ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਘੋਰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। जी सर, मेरा नाम इमदाद अहमद है। मैं यहाँ 4 साल से अपना बिजनेस में हूँ और मैं यहीं पर अपना रेजिडेंस भी है मेरा रहने के लिए। और पिछले 2 साल से मैं इस कमेटी का मेंबर भी हूँ। यहाँ पर जो इन्होंने अपनी एंड से कमेटी बनाई हुई है। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर इशू चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिसका मेन पर्पस यही है इन लोगों का, इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है जो हाजी रतन के नाम से बनाई हुई है।
जो एक इलीगल कमेटी है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम वक्फ बोर्ड एंड यहाँ के जो लोग बाग हैं उनके बिना परमिशन के इन्होंने एक कमेटी बनाई, जो ये कमेटी के खुद ही 4 घर के मेंबर हैं। और पीछे यहाँ 30 साल से फ्री में जो बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग बाग। अब वक्फ बोर्ड ने उस पर एक सराहनीय कदम उठाया है, जो वक्फ बोर्ड ने एक मीटर लगाया है जिससे कि वक्फ बोर्ड उसका पे करेगा जो भी उसका बिल आएगा, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, इसमें इस तरह का कोई फ्री में या कोई दान वाली चीज़ें सही नहीं है। तो इन लोगों ने ये इशू उठाया कि हम इस पे अपने नाम का कनेक्शन लगाएंगे, जिससे कि ये इस पर होल्ड करना चाहते हैं, अपना एक कब्जा करना चाहते हैं। तो इनका मेन मकसद यही है। पीछे ये चंदा उगाते थे कि बिजली के खर्च रहा थे और मस्जिद का और कुछ अपना ज़ियारत का, जिससे ये अपने स्वार्थ के लिए चंदा उगा के खुद उसका इस्तेमाल करते हैं। पीछे भी इन्होंने कई जगह प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है वक्फ बोर्ड की, जो साई नगर में प्रॉपर्टी है इन्होंने अपने नाम पे, फैमिली के मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी में लिया हुआ है। और इन्होंने अभी नया एक एलिगेशंस लगाया है कि यहाँ से डीसी साहब और वो बोर्ड वालों का यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, जो कि डीसी साहब है वो डिप्टी कमिश्नर है, पूरे अंडर उनके ज़िला आता है, वो उसकी देखभाल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो भी रीति रिवाज है और जो भी कानून के दायरे में काम होता है। अब ये अपने स्वार्थ के लिए उन पे एलिगेशन लगा रहे कि इनकी यहाँ से छुट्टी कराई जाए। और वो बोर्ड वाले भी ये मुलाजिम है जो वो बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अब ये अपने होल्ड में लेने के लिए उन पे प्रेशर बना रहे हैं, उन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे दे के भी और उनको डरा धमका के भी कि ये हमारे अंडर में आ जाए, जिससे कि हम प्रॉपर्टी पे कुछ कब्जा कर ले। और ये क्या चीज़ है यहाँ पे बड़ी ईदगाह बनी हुई है? ये हाजी रतन दरगाह है जो बहुत बड़ी, बहुत वर्षों से प्रसिद्ध है एक तरह से, और इस पे भी ये कब्जा करना चाहते हैं। इसकी आड़ में ये अपना चंदा उगाते हैं, जिससे ये एक ही परिवार के कुछ लोग हैं, जिसमें से मोहम्मद हनीफ़ खान जो चेयरमैन बने हुए हैं, उनके बेटे मोहम्मद अशरफ खान जो सेक्रेटरी बने हुए हैं, और एक इनके दामाद साहब है और इनके मिलने वाले, एक ही फैमिली के 4 से 5 मेंबर इन्होंने कमेटी का गठन किया हुआ है। और जिससे ये चंदा उगाते हैं, जकात का पैसा लेते हैं, फितरा जकात जो भी यहाँ पे होता है उसकी आड़ में राजनीति करते हैं, पॉलिटिशियन को बुला के उनसे पैसा लेके अपने खा लेते। नई मस्जिद के नाम पर चंदा उगाया है, जो साई नगर में बोले कि अल्फेज के नाम से हम एक मस्जिद बना रहे हैं, जिससे कि हमें वह बोर्ड ने जगह प्रॉपर्टी एक अलाउड की है। बट हमने सीओ साहब से पीछे मीटिंग हुई थी हमारी 3 तारीख को, तो सीओ साहब से हमने पूछा था कि जी सर आपने कोई जगह अलाउट की है। सीओ साहब ने मना कर दिया कि हमने कोई जगह नहीं दी है। तो उसमें इन्होंने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए चंदा उगाया है, जिसमें मैंने भी चंदा दिया है, मेरे साथ के ये भाई साहब इन्होंने भी चंदा दिया है, इन्होंने भी चंदा दिया है। तो हमने इसकी जो एप्लीकेशन थी वो एसपी को भी दी, डीएसपी को भी दी है, और हमारे पास सारी स्लिप है। क्या हमने बोला भाई ये जब तक कोई मस्जिद नहीं बने तो हमारे लोगों का पैसा वापस करा जाए। तो इसने बोला कि मैं पैसा वापस कर दूंगा। अब बोला कि कमेटी बैठेगी, कमेटी कब बैठेगी इनका कुछ पता नहीं। तो ये इस आड़ में राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करके चंदा उगा रहे हैं मस्जिद के नाम पे, और ये जो अपना ईदगाह है और ये दूसरा ज़ियारत के नाम पे, तो जामा मस्जिद के नाम पे। तो ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, इनका कोई काम नहीं है और ना ही इनका कोई अपना बिजनेस है। ये सिर्फ चंदा और लोगों को गुमराह करके डरा धमका के हम शहरी है और ये बाहरी है, लोगों से ही चंदा ले रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहरी लोग बताते हैं, जबकि 20 साल से अंकल भी रह रहे हैं, हम भी यहाँ रह रहे हैं। ठीक है ना। तो इस चंदे को रोका जाए और ये जो सारा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं कमेटी का मेंबर हूं और मैंने हिसाब मोहम्मद अशरफ से मांगा, 2 बार मांगा, इसने साफ मना कर दी, मैं किसी को हिसाब नहीं देने का, हिसाब ही नहीं दिया उसने। मैं 7 साल से इसका मेंबर हूं। आज तक इन्होंने हाँ जी, हिसाब नहीं देता भाई, हिसाब क्यों नहीं देता? हिसाब मांगा, उस पे प्रताड़ित किया गया, उस पे फिजिकली। अब यो चाहता हूं कि हिसाब मिलना चाहिए हमें और ये कमेटी भंग हो जानी चाहिए। कमेटी भंग हो जाए जो इलीगल। मेरा नाम फ़हीम अहमद है जी। काफ़ी वक्त से मैं भी यहाँ नमाज़ पढ़ने आता हूँ। यही देखता हूँ कि हर वक्त राजनीति का माहौल होता रहता है, कभी कोई राजनीति, कभी कोई राजनीति, कभी वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद, कभी डीसी के साहब के साथ मुर्दाबाद, कभी एसएसपी के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद। यही नारे लगते रहते हैं हमेशा, कभी गालियाँ निकालना, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। बस यही मामला, असल यही मामला है इनका कि मस्जिद के और हाजी रतन के ऊपर कब्ज़ा करना, बस और कोई मामला नहीं। ये हम होने नहीं देंगे। सहयोगी सुनील ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਕਰਨ, ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਟੀਵੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।